Okay, Namaskaram for the second round, my dear students. Let's start with the concept of scope of total income. Majority of this aspect we have already discussed. Some more aspect we will touch upon, and we will try to discuss one or two questions to give you clarity about the whole concept. So you must understand there are two types of incomes. According to section 5, there are two types of income, Indian income and foreign income. So what do you mean by Indian income? Indian income means income accrues in India, income received in India, income deemed to be received in India, income deemed to be accrued in India. Income accrued in India matlab, sir, actually source is located in India. Actually source is located in India. And income received in India का मतलब होता है कि source might be located outside India, लेकिन आपने directly India में received किया हुआ है. To explain you this, I take always example of one thing and one judgment of UK court. Okay, not Indian court, UK court. In UK court, it was very nicely explained कि ये accrued और income का relation क्या होता है, source और income का relation क्या होता है, cause effect analysis क्या होता है. तो उन्होंने बोला इफ लैंड इज द सोर्स, अगर आप लैंड को सोर्स मानते हो तो उसमें से जो क्रॉप्स आता है वो इनकम होता है. इफ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम. तो अगर लैंड इंडिया में लोकेटेड होगा तो उसमें से जो क्रॉप आया हुआ है वो इंडियन क्रॉप्स माना जाएगा, अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा. फिर उन्होंने बोला इफ अ ट्री इज द सोर्स, इफ अ ट्री इज द सोर्स देन फ्रूट इज द इनकम. If a tree is the source, then fruit is the income. Now please understand, अगर ट्री इंडिया में लोकेटेड होगा तो इसको फ्रूट को इंडियन फ्रूट माना जाएगा. एकदम ऑर्डिनरी एग्जांपल अगर मुझे आपको देना है तो इमेजिन करो कि आप इंडिया के हो, आप कोकन के हो, आपके यहाँ पे हापुस आंबा बहुत फेमस है, विच इज नोन एज अल्फेंसो मैंगो. From your area, Alfonso mango is very famous, and you are traveling to Dubai to have some business meeting. When you become a professional, आप जब CA में बन जाते हो, you are traveling to Dubai to meet one client या to meet a friend, कुछ बिजनेस डीलिंग होने वाला आप लोगों का, तो आप इंडिया से वहां ट्रैवल करते हो. Obviously, because you are traveling to Dubai, you will carry a pack of Alfonso mango with you. और ये Alfonso mango जब आप अपने फ्रेंड को दुबई में प्रेजेंट करोगे तो while eating, what will he think? ये दुबई मैंगो है कि इंडियन मैंगो है? क्या लगता है आप लोग को, दुबई मैंगो की इंडियन मैंगो? मैंगो इंडिया से दुबई जा रहा है, खा रहे हो दुबई में, क्या ही है, दुबई मैंगो है कि इंडियन मैंगो है? इंडियन मैंगो. क्यों इंडियन मैंगो है? मैंगो तो अभी दुबई में है, तो सर उसका पेड़ कहाँ पे है, मैंगो का पेड़ कहाँ पे है? इंडिया में है. तो आप ये समझो कि आप इनकम कहाँ रिसीव करते हो ना, उससे लेना देना नहीं होता. इनकम का सोर्स कहाँ पे होता है ना, उससे लेना देना होता है. सिमिलरली अगर मैं अभी इनकम की कॉन्सेप्ट की बात करूं, इफ यू आर हैविंग अ हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड राइट नाउ यू आर स्टेइंग इन कनाडा, और इंडिया का टेनेंट आपको कनाडा में इनकम दे रहा है, यू आर इन कनाडा, यू आर अ नॉन रेसिडेंट पर्सन, ठीक है ना, लेकिन आपका हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो ये रेंट इंडिया में टैक्स होगा कि नहीं होगा, या रेंट ये कौन सा इनकम है, इज इट इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम? ये इंडियन इनकम है कि फॉरेन इनकम है? आप रिसीव कनाडा में कर रहे हो, अच्छा एक और बता देता हूँ, रिसीव आप डॉलर में कर रहे हो? इंडियन इनकम. सर ये इंडियन इनकम ही है सर, ये फॉरेन इनकम नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि सोर्स जो है ना वो इंडिया में है. तो आपको याद कैसे रखना है, इफ अ लैंड इज द सोर्स देन क्रॉप इज द इनकम, इफ अ ट्री इज द सोर्स देन फ्रूट इज द इनकम. Similarly, if employment is the source then salary is the income, if a house property is the source then rent is the income, if a business is the source then profit is the income, capital asset is the source then capital gain is the income, debenture is the source then interest is the income, equity share is the source then dividend is the income, bank account is the source then interest is the income. And if these sources are located in India, all these incomes are called as Indian income. and अगर ये Indian income बन जाता है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल. ये टैक्सेबल टू OR, NOR या NR, आप कोई भी रहो, ये टैक्सेबल टू ऑल हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस. तो नियम एकदम सिंपल है, इसको हम सोर्स रूल ऑफ टैक्सेशन बोलते हैं कि अगर सोर्स ऑफ इनकम इज लोकेटेड इन इंडिया देन सच इनकम विल बी कॉल्ड एज इंडियन इनकम, वेदर इट इज रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. आप इंडिया में रिसीव करो, बाहर रिसीव करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल टू ऑल हो जाएगा. सर अभी आप इंडिया में हो, लेकिन आपका बिजनेस जो है
वो जर्मनी में है, आपका बिजनेस जो है वो जर्मनी में है, और जर्मनी का आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपका जो प्रॉफिट शेयर होता है वो इंडिया में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है ना। तो आपको हर महीने आपके बिजनेस में से 5 लाख रुपया मिलता है, यू गेट 5 लाख रुपीज फ्रॉम योर बिजनेस एनुअली, ये 60 लाख हो जाता है, और ये डायरेक्टली आप इंडिया में रिसीव करते हो। बिजनेस कहाँ पे है, जर्मनी में है, अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है वहां पे, अपने लोग रखे हुए हैं, मैनेजर रखा हुआ है, सब कुछ है वहां पे, आप अभी इंडिया में हो। बोलो ये टैक्सेबल होगा क्या, इसका सोर्स जर्मनी में है, सोर्स जर्मनी में है, नहीं हो विल इट बी टैक्सेबल इन इंडिया? नो नो तो दिस इज टैक्सेबल इन इंडिया, ठीक है ना, ये भी टैक्सेबल इन इंडिया होगा। सर ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा आप अभी, आपने नो बोला क्योंकि आप अभी सोर्स रूल लगा रहे हो, वेयर एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एक रूल अडॉप्ट किया है जिसको रिसिप्ट रूल बोलते हैं। रिसिप्ट रूल का नियम ऐसा है कि इनकम भले बाहर अक्रू हो जाए, आप अगर डायरेक्टली रिसीव करोगे इंडिया में, इफ यू रिसीव दिस इनकम डायरेक्टली इन इंडिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। इफ यू रिसीव इनकम डायरेक्टली इन इंडिया तो टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल इन इंडिया। if income is directly received in India then it will be considered as Indian income even if source is located outside India। इंडिया में क्यों रिसीव किया, इंडिया में रिसीव करना ही नहीं चाहिए था। तो आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल लाइफ में जो काम आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन में। ये इंडिया है, यहाँ पे मान लो श्रीलंका है, ठीक है ना, ज्योग्राफिकली एक्चुअली वहां पे नहीं है लेकिन आप मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है। यहां से एक बोट निकला, इस बोट में श्रीलंका से 4 कंटेनर लोड हुए, ठीक है ना, श्रीलंका से 4 कंटेनर लोड हुए, ये पर्सन जो है ये नॉन रेसिडेंट पर्सन है, ठीक है ना। मुझे बताओ ये 4 कंटेनर अभी तक इंडिया में टैक्सेबल है क्या, अभी तक? नो नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये लोड हुआ है श्रीलंका से, तो सोर्स जो है इसका आउटसाइड इंडिया है, सोर्स आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना। लेकिन ये शिप ना चल चल के हमारे यहाँ पे चेन्नई पोर्ट पे आ गया, ठीक है ना। चेन्नई पोर्ट पे जब ये वेसल आया तब इसके अंदर ऑलरेडी 4 कंटेनर थे जो श्रीलंका से उन्होंने लिए हुए हैं, ठीक है ना। इंडिया से और 3 कंटेनर उसके ऊपर गए, देखो ये इंडिया से 3 कंटेनर गए, ये 3 कंटेनर इंडिया में टैक्सेबल है क्या? बंदा ये एनआर है? यस यस, इंडिया से लोड हो रहा है क्योंकि सर इसका सोर्स कहाँ पे है, इंडिया में है, सोर्स इंडिया में, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा ये जो 4 कंटेनर है ना, इसका पैसा श्रीलंका की एजेंट ने श्रीलंका में नहीं दिया था, उसने बोला था आप निकलो आगे, आपको इंडिया में हमारा एक एजेंट है, आपको इंडिया में पैसे मिल जाएंगे। तब जब ये इंडिया में खड़ा था, इंडियन वाटर्स में जब था, तो ये श्रीलंका के 4 कंटेनर का पेमेंट इसको इंडिया में मिला। अब बोलो ये 4 कंटेनर इंडिया में टैक्सेबल होंगे क्या, पेमेंट रिसीव्ड इन इंडिया? यस यस हाँ सर ये टैक्स हो जाएगा क्योंकि पेमेंट इंडिया में रिसीव हो गया ना, गेम ओवर सर। सर सोर्स आउटसाइड इंडिया है भैया, सोर्स अगर आउटसाइड इंडिया रखा है तो रहने दो ना। अच्छा अब तुम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने फार्मर्स की लैंग्वेज को समझा होगा। जो फार्मर्स होते हैं ना वो लोग ना हमारे मराठी में बोलते हैं ना, बांदा वरून भांडतात, लाइक बॉर्डर के ऊपर बहुत झगड़ा चलता है वो लोगों का। आपको पता है ना, ये फार्मर्स लोग, यहाँ का फार्मर बाजू वाले फार्मर से हमेशा झगड़ा करते था, पता नहीं क्यों, जिंदगी में उसके क्या खुश रहना नहीं चाहते ये लोग। अब ये फार्मर भी ना कितना शाना है, देखो ना, ये फार्मर ने ना मैंगो ट्री यहाँ पे लगाया, यहाँ पे मैंगो ट्री लगाया, समझो, ठीक है ना। अब मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, मान लो आप अपने लैंग्वेज के लिए मान लो ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, और बॉर्डर पे इसने ट्री लगाया हुआ है। मुझे बताओ इंडिया के यहाँ पे जो मैंगो, इस झाड़ पे जो मैंगो लगे हुए हैं, ये इंडियन मैंगो की फॉरेन मैंगो? इंडियन मैंगो इंडियन मैंगो। अच्छा यहाँ का कुछ मैंगो यहाँ गिरा, मतलब मैंगो अक्रूज इन इंडिया, मैंगो रिसीव्ड इन इंडिया, तो अभी भी ये इंडियन ही है ना? हाँ हाँ अच्छा, मैंगो अक्रूज इन इंडिया, लेकिन इस झाड़ का एक ब्रांच यहाँ पे भी गया हुआ है, एक आगे ब्रांच गया हुआ है। मैंगो अक्रूज इन इंडिया, झाड़ इंडिया का है लेकिन मैंगो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गया, मैंगो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो गया। जल्दी बोलो अभी, ये इंडियन मैंगो की फॉरेन मैंगो, ये मैंगो इधर गिरा, पाकिस्तान की जमीन पे गिरा, बॉर्डर पे पेड़ है ना। इंडियन मैंगो, ये इंडियन मैंगो है, क्यों? क्योंकि अक्रूज इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। सर अक्रूड इंडिया हो गया ना, गेम ओवर। ये हमारा सोर्स हमारा है, तो आप इंडिया में रिसीव करो तभी भी इंडियन, फॉरेन में रिसीव करो तभी भी इंडियन। सर इसी के कंपैरिजन में आप दूसरा वाला ट्री देखो, अब ये इंडिया पाकिस्तान है, फिर से ये इंडिया और ये पाकिस्तान है, अब मैंगो का ट्री पाकिस्तान में है, ठीक है ना। मुझे बोलो ये पाकिस्तान का मैंगो पाकिस्तान में अक्रूड हुआ और पाकिस्तान में गिर गया, तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया,
अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, जल्दी बोलो। इंडियन मैंगो, फॉरेन मैंगो? Foreign Foreign mango. फॉरेन मैंगो। फॉरेन मैंगो, mango. ठीक है, क्योंकि सर इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है इंडिया से, तो इंडिया के बाहर अक्रू हुआ, इंडिया के बाहर रिसीड हुआ, इसको हम फॉरेन इनकम बोलते हैं। लेकिन ये जो पेड़ है ना, पेड़ उसका एक ब्रांच ना इंडिया में भी है, उसका एक ब्रांच इंडिया में भी है, और यहाँ पे मैंगो लगा हुआ है और ये जमीन पे गिरेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? Indian mango. इसको गिरे हुए को इंडियन मैंगो बोलेंगे। उनका हिम्मत है ये मैंगो उठा के लेके जाने का? हाँ, ये मैंगो हम उनको उठाने नहीं देंगे, क्योंकि ये इंडियन मैंगो है। क्यों? क्योंकि हमारे जमीन पे गिरा हुआ है। तो तुम जरा ये समझने का ट्राई करो कि जब पेड़ हमारा था ना, वो तुम बोलते हैं ना, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, ऐसा सुना है आप लोगों ने? हाँ। तो ये देखो, ये जो मैंगो मेरा है वो मेरा है, जो मेरा यहाँ पे गिरा वो भी मेरा ही है, क्योंकि मैंगो मेरा है। लेकिन सुन, तेरा मैंगो तेरे यहाँ पे गिरा तो तेरा है, लेकिन तेरा मैंगो मेरे यहाँ पे गिरा तो वो मेरा है। जो जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। इसका मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको इसको बिजनेस लैंग्वेज में सिखा देता हूं। अगर आपकी कंपनी इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी इंडिया में भी इनकम कमा रही है और फॉरेन में भी इनकम कमा रही है, बोलो कहां पे टैक्सेबल होगा? इंडियन इनकम इंडिया में रिसीव हो रहा है, इंडियन इनकम फॉरेन में रिसीव हो रहा है, बोलो। इंडिया में टैक्सेबल होगा दोनों। इंडिया में टैक्सेबल होगा। आपकी कंपनी कोको कोला है, फॉरेन की कंपनी है, आपकी कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, जल्दी बोलो। इंडियन इनकम ना, Indian taxable इंडियन होगा। इनकम। इंडिया में रिसीव करोगे तभी भी टैक्सेबल होगा, फॉरेन में रिसीव करोगे तभी भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि आप बिजनेस इंडिया में कर रहे हो। सर लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपका बिजनेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, आपका बिजनेस वहां पे है, बिजनेस अक्रूड वहां पे हो रहा है, ठीक है, आप बिजनेस वहां पे कर रहे हो, बिजनेस का पैसा भी वहां पे रिसीव कर रहे हो, अब बिजनेस कर भी रहे हो फॉरेन में, बिजनेस का पैसा भी वहां पे कर रहे हो। खाली आपके बूढ़े माँ बाप इंडिया में है, ये 2 बूढ़े माँ बाप इंडिया में है, उनके मेंटेनेंस के लिए आप कुछ पैसा रेमिट करते हो, इसको फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं। क्या ये बूढ़े माँ बाप के हाथ में वो पैसा टैक्सेबल होना चाहिए? एग्जाम्पल समझा मेरा, मैंने क्या बोला? इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। आप फॉरेन में बिजनेस कर रहे हो, फॉरेन में जॉब कर रहे हो, आपने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, आपके ओल्ड एज पेरेंट इंडिया में है, आप उनके लिए खाली कुछ महीने में 20-20 हजार रुपया आप ट्रांसफर करते हो उनके अकाउंट में, क्या वो टैक्सेबल होगा इनके हाथ में? इज इट रिसीव्ड इन इंडिया? No. नहीं, ये रिसीव्ड इन इंडिया नहीं होता। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो ये याद रखो, फॉरेन रेमिटेंसेस। रेमिटेंस मतलब जो मैंगो वहां पे गिर के बाद में यहाँ पे आया हुआ है, आर नॉट कंसिडर्ड एज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। मेरे मैंगो ट्री के एग्जांपल में जो मैंगो पाकिस्तान में गिरा, पाकिस्तान का मैंगो जो पाकिस्तान में गिरा, गलती से बाउंस होके यहाँ पे इंडिया में आया, हम इतने ईमानदार है कि हम खुद उठा के उनको दे देंगे, बोलेंगे भैया ये गलती से यहाँ पे आया, आप आपके ले लो। हाँ, डायरेक्टली इंडिया में कुछ आता है तो हमारा, बाउंस होके इंडिया में आता है तो हमारा इंडिया का नहीं है। तो आप ये समझो कि अगर फॉरेन का इनकम फॉरेन में रिसीव हुआ, फॉरेन का इनकम फॉरेन में रिसीव हुआ, तो वो फॉरेन इनकम ही रहेगा, भले आप उसको इंडिया में रेमिट करो। अच्छा, एक और एक आइटम आता है आगे जाके, ये इंडिया है, आपके पापा ने इंडिया 10 साल पहले छोड़ दिया है, 10 साल पहले, 10 साल से वो इंडिया में आए नहीं है, इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। 10 साल से पापा इंडिया में नहीं आए, रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। पापा दुबई में है या किधर भी, किसी भी फॉरेन कंट्री में? एनआर ना, पक्का एनआर, इंडिया में आए ही नहीं थे। अच्छा, उसी टाइम में अभी कोविड आ गया, लास्ट प्रीवियस ईयर में कोविड आ गया, सारी जगह पे सब कुछ बंद हो गया। आपको नहीं लग रहा, आपके पापा को लगा रहेगा कि यार अभी ये बिजनेस करके पैसा कमा के क्या मतलब है? हाँ, जब लोगों की जाने जा रही है, लोगों की लाइफ इतने ट्रेड पे लगी हुई है, एटलीस्ट आई शुड स्टे विथ माय फैमिली। पैसे तो बहुत बना लिए, पापा ने वहां पे 50 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया था, 50 करोड़ का मान लो, ठीक है ना, 50 करोड़ का प्रॉपर्टी बना लिया, बस स्टिल अलोन, अभी अकेले है, पूरा फैमिली इंडिया में है, ठीक है ना। आपको नहीं लग रहा इनको अभी इंडिया आ जाना चाहिए? हाँ। अगर आपके पापा वहां का सब कुछ बेच के ये 50 करोड़ लेके इंडिया में आ रहे हैं, तो विल यू वेलकम देम या डिस्करेज करोगे? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इसको वेलकम करना चाहिए कि डिस्करेज करना चाहिए? वेलकम करना चाहिए सर, आ जाओ। जब आपके पापा 10 साल से बिजनेस कर रहे थे, लास्ट 10 ईयर से बिजनेस कर रहे थे किसी फॉरेन कंट्री में, तो ऑब्वियसली इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया हो गया। एम आई राइट? इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया।
राइट, एंड इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो ये तो फॉरेन इनकम था ना 50 करोड़ का। क्या ये लास्ट 10 सालों में कभी भी इंडिया में टैक्स हुआ रहेगा क्या? नहीं। नहीं, No. क्योंकि हर साल ये अक्रूड आउटसाइड इंडिया था, हर साल ये रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया था, और आपके पापा नॉन रेसिडेंट थे, तो ये कभी टैक्सेबल ही नहीं हुआ। तो इस 50 करोड़ के प्रॉफिट को जो भी पापा इंडिया में लेकर आ रहे, इसको बोला जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है फॉरेन प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट, सॉरी, फॉरेन अनटैक्स्ड, foreign untaxed profit brought to India during PY। आपने ड्यूरिंग प्रीसीडिंग ईयर में फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट इंडिया में लाया। ये अनटैक्स जो वर्ड है ना, अनटैक्स वर्ड, ये चुना लगा देता है। आपको लगता है ऐसे कैसे अनटैक्स रख दिया उसको, उसको तो हम टैक्स करके रहेंगे। बोलो ये टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं। ये 50 करोड़ जो अभी पापा इंडिया में लेके आ रहे, भैया ये अनटैक्स इसलिए था क्योंकि आपका कोई भी रूल उसको एप्लीकेबल नहीं था। ये कैपिटल है, ये इनकम थोड़ी ना क्या है, ये उनका कैपिटल है। अभी तक तो उन्होंने जो सेविंग करके रखा था वो पैसा ही है, ये इनकम ही नहीं है। भैया टैक्स तभी लगाना जब ये इनकम होगा। भैया ये इनकम ही नहीं है, जब इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहां से लगाओगे आप लोग? हाँ, ये टैक्स ही नहीं लगाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, यहाँ पे नोट में मैंने लिख के रखी है, देखो। Resident and ordinary resident liable to pay tax on global income subject to DTAA relief, double taxation avoidance agreement। फाइनल की बात है, जाने दो। NR will pay tax only on Indian income, हमें पता है। तीसरा नोट देखो जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, मैंने बोला पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नॉट टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि ये इनकम ही नहीं है, नॉट एन इनकम। ये बाबा इनकम ही नहीं होता, ठीक है। ये आई होप क्लियर हो जाएगा। चलो आगे चलता हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, एक ही बात बताओ आप लोग, आज की तारीख में हम लोग, आप में, हम सब लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। आई होप नो आर्ग्यूमेंट विद दिस, राइट? Yes. यस, हम सब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। अगर हम इंडिया में कमाएंगे तो विल वी पे टैक्स इन इंडिया? हाँ। हाँ। यस। हाँ। अच्छा, हम फॉरेन में कमाएंगे और रिसीव्ड इंडिया में करेंगे तो टैक्सेबल हो जाएगा? Yes. यस। हाँ। अगर हम फॉरेन में ही कमाएंगे, फॉरेन इनकम एंड रिसीव्ड भी फॉरेन में ही रखेंगे, फॉरेन इनकम रिसीव्ड आल्सो इन फॉरेन कंट्री, तो इंडिया में टैक्स होगा कि नहीं होगा? No. नो। जल्दी बोलो। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, अभी तक उसको इंडिया में लाया भी कुछ नहीं है, सब कुछ उधर ही है, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? No. नहीं होगा। नहीं। टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, यही तो गेम है। टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों सर, तुम कौन हो? पर ग्लोबल इनकम नहीं, पर वगैरह बात कर लेंगे, तुम कौन हो? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो ना। तुम चांद पे भी कमाओगे ना तभी भी टैक्स होता है। मैंने क्या बोला समझा आपको? सर हाँ। ये तो नियम आपने पढ़ाया नहीं था, ये थर्ड नियम है, ये थर्ड नियम है पॉजिटिवनेस का। पॉजिटिवनेस समझते हो ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको लेके कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। इफ अ पर्सन बिकम्स अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इफ अ पर्सन बिकम्स resident and ordinary resident in India during the previous year, then his Indian as well as foreign income become taxable in India, क्योंकि गवर्नमेंट ओआर को लेके पॉजिटिव है। ओआर कौन? ओआर वो बंदा जो इंडिया का इंफ्रा यूज करता है, जो इंडिया की गवर्नमेंट की फैसिलिटी यूज करता है, इंडिया की लैंड यूज करता है, इंडिया का ऑक्सीजन यूज करता है, इंडिया का वाटर यूज करता है, इंडिया की मिलिट्री उसको प्रोटेक्ट करती है, इंडियन हेल्थ केयर उसको सपोर्ट करता है। तो आपका हक बनता है ना टैक्स देने का। हाँ। अरे जब से पैदा हुए हो इसी देश में पले बड़े हो, तो आपको नहीं लग रहा आपका एक सोशल ऑब्लिगेशन इस देश को टैक्स देने का? Yes. हाँ। तो देश को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया में, तो भले आप फॉरेन इनकम कमाओ, आपको देश में टैक्स देना ही पड़ेगा। तो देखो देखो देखो, समरी देखो, अल्टीमेटली आपको जिंदगी में याद क्या रखना है, यही याद रखना है। मुझे बताओ, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा टैक्सेबल, होगा। क्योंकि सोर्स रूल लग रहा है। अक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया में टैक्स होगा?
होगा 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 क्योंकि सोर्स इंडिया में है। होगा। अक्रूड आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में, फॉरेन का इनकम बट रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल होगा होगा होगा। ये तीनों का तीनों ना इंडियन इनकम है। ये ओआर को भी टैक्स होता है, ये एनओआर को भी टैक्स होता है और ये एनआर को भी टैक्स होता है, क्योंकि ये इंडियन इनकम है। इंडियन इनकम आपका स्टेटस से नहीं चेंज होता, इंडियन इनकम है ना बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल। अच्छा, अक्रूड आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, क्या ये भी टैक्स हो सकता है इंडिया में? हाँ हाँ, लेकिन ओनली फॉर ओआर ओनली फॉर ओआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये रेसिडेंस रूल के हिसाब से टैक्सेबल हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है जिंदगी में, इंडियन इनकम जो है ना, इंडियन इनकम जो अक्रूज इन इंडिया है, ये टैक्सेबल होता है तीनों के लिए। ये देखो यहाँ पे टैक्सेबल होता है तीनों के लिए, अक्रूड इन इंडिया और फर्स्ट प्लेस ऑफ रिसिप्ट अगर लोकेटेड इन इंडिया होगा तो टैक्सेबल होगा। सर डीमिंग फिक्शन क्या है? गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स को डीम कर दिया है कि बाबा इसमें हमें आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन। फाइनल में आओगे तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है कि हमने एनआर को क्लियरली बता दिया कि ये इनकम जो है ना वो इंडिया में ही टैक्स होगा। आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना। जब फाइनल में आएंगे तो फाइनल में ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। सब फॉरेन इनकम दो मैंने बता दिए थे। फॉरेन इनकम दो टाइप के होते हैं, पीजीबीपी हेड का और अदर हेड्स का। पीजीबीपी हेड का अगर होगा और बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया होगा या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया होगा तो ये दो लोगों के हाथ में टैक्सेबल होता है, ओआर एंड एनओआर। ये आपको बता दिया मैंने, एम आई राइट? यस फॉरेन इनकम अगर होगा, Yes. बिजनेस अगर इंडिया से कंट्रोल करोगे तो ओआर भी टैक्स भरेगा, एनओआर भी टैक्स भरेगा, लेकिन एनआर फॉरेन इनकम के ऊपर जिंदगी में कभी टैक्स नहीं भरेगा। एनआर क्यों फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स भरेगा? एनआर तो नॉन रेसिडेंट है ना, बेचारा जापानीज जापान में कमा रहा है, उसको थोड़ी ना कि इंडिया में टैक्स लगाएंगे। तो एनआर फॉरेन की इनकम के ऊपर टैक्स कभी नहीं भरता। हाँ, जो अदर हेड के इनकम होते हैं जैसे सैलरी, आईएफओएस, कैपिटल गेन, उसके ऊपर टैक्स लगता जरूर है, लेकिन खाली ओआर टैक्स भरता है, ओनली ओआर। ये रेसिडेंस रूल है, ये आपको पता है। तो अल्टीमेटली आपको टेबल में क्या याद रखना है, टेबल में क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे ये टेबल आपको एग्जाम में बनाना पड़ता है, इस पैटर्न में आपको इसके आंसर देने पड़ते हैं। स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चंस के 5 से 8 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में टारगेटेड होता है इसका। इंडियन इनकम अगर होगा ना, इंडियन इनकम 4 टाइप का होता है, अक्रूड इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, भैया सबके हाथ में टैक्सेबल है। फॉरेन इनकम बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया एंड प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया अगर होगा तो ओआर के हाथ में तो टैक्सेबल होना ही है, साथ ही साथ में एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल होता है। ये एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होता है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होता है, इसी को ही हमें टैक्स करने के लिए एनओआर करके कैटेगरी हमने बनाया। फॉरेन इनकम फॉरेनर के हाथ में कभी टैक्सेबल नहीं होगा। अदर फॉरेन इनकम ना एनआर के हाथ में टैक्सेबल होता है ना एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होता है, लेकिन ओआर का तो नसीब ही खराब है। ओआर के लिए तो गवर्नमेंट कॉलर पकड़ के बोलता है तुम सिर्फ मेरे हो, तुम पे मैं टैक्स लगा के रहूंगा, ठीक है ना। तो उसके ऊपर बाबा बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज भी यही लेता है। एग्जम्प्ट इनकम किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। कैपिटल रिसीट जो होती है, कैपिटल रिसीट, आपने बैंक से लोन लिया तो टैक्सेबल नहीं होगा, आपके पापा ने आपको 2 लाख रुपए दे दिए, वो तो गिफ्ट है, वो तो टैक्सेबल नहीं होगा। तो कुछ कैपिटल रिसीट्स होती है जो टैक्सेबल नहीं होती, जो गिफ्ट टैक्सेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। Certain capital receipts are not taxable. Gift received from relative, gift received on marriage date, gift from other person up to 50,000 not taxable, more than 50,000 fully taxable, ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब जो आएगा उसको आप बोलते हो ग्रॉस टोटल इनकम, इसको जीटीआई बोला जाता है। और जीटीआई में से चैप्टर 6 से के डिडक्शंस कुछ दिए जाते हैं, 80C से 80U तक दुनिया भर के डिडक्शन है। एक डिडक्शन में आप लोगों को यहीं पे बता देता हूं, एक 80TTA करके एक डिडक्शन आता है जो होता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आपने कभी सुना है इसके बारे में? सेक्शन 80TTA के बारे में कभी सुना है क्या जिंदगी में? नहीं। तो आपने सेविंग बैंक के अकाउंट के बारे में तो सुना होगा, आपकी शायद सेविंग बैंक अकाउंट होंगे भी, राइट? हाँ। तो उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट होता है ना वो टैक्सेबल होता है आईएफओएस में। आईएफओएस में टैक्सेबल है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि अप टू 10,000 उसको डिडक्ट करो, अप टू 10,000 उसको डिडक्ट करो अंडर सेक्शन 80TTA, जो चैप्टर 6 में मिलेगा। उसका एप्लीकेशन में आपको पढ़ा दूंगा जब हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो आता है ये टोटल इनकम आता है। और आपको अगर कल का चार्जिंग सेक्शन याद है तो चार्जिंग सेक्शन 4 में लिखा गया एकदम क्लियरली, भैया टोटल इनकम अर्न्ड बाय ए पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, असिस्ट इन असेसमेंट ईयर, ऐसी बात की गई है।
कुछ नोट्स आपको पता होने चाहिए। हमारा इनकम टैक्स लॉ जो है वो कॉम्प्रहेंसिव लॉ है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्रहेंसिव लॉ? कॉम्प्रहेंसिव लॉ मतलब इस यूनिवर्स में जितने इनकम है ना सारे टैक्सेबल है। तो क्या आप बाय हार्ट कर सकते हो क्या क्या टैक्सेबल है? जल्दी बोलो। इस यूनिवर्स में जो भी है ना सब कुछ टैक्सेबल है। क्या आप लिस्ट बना सकते हो ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल? ऐसा कोई लिस्ट बन सकता है क्या? No. नहीं, क्योंकि दुनिया में जो भी है ना सब कुछ टैक्सेबल। सर लेकिन सब कुछ टैक्सेबल नहीं होना चाहिए ना, कुछ कुछ तो एग्जम्प्ट भी होना चाहिए। हाँ, कुछ आइटम को हमने एग्जम्प्ट करके रखा हुआ है, उसको हम एग्जम्प्ट इनकम बोलते हैं, जिसको सेक्शन 10 में लिखा है। ये लिमिटेड लिस्ट है, ये लिमिटेड है। क्या ये बाहर हो सकता है? जल्दी बोलो। हाँ। हाँ सर जो लिमिटेड है वो बाहर हो सकता है। तो अगर आप जब सीए बन जाओगे, सीए में बन जाओगे, ठीक है ना, आपकी शादी हो जाएगी, आपका जब छोटा बेटा आएगा इस दुनिया में और वो पूछेगा पापा पापा पापा, आपको कैसे पता चलता है कि इंडिया में क्या टैक्सेबल और क्या नॉट टैक्सेबल? आप उसको क्या बताओगे कि बेटा अगर कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम में होगा, कोई भी इनकम एग्जेम्प्ट इनकम में लिखा होगा तो वो नॉट टैक्सेबल। एम आई राइट? यस। इनकम अगर एग्जम्प्ट होगा तो नॉट टैक्सेबल, और एग्जम्प्ट इनकम में नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल। तो मेरे पास ऐसा कभी क्वेश्चन मत पूछना कि सर आपको किसने बताया सैलरी टैक्सेबल होता है, आपको किसने बताया अलाउंस टैक्सेबल होता है, आपको किसने बताया रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल होता है, आपको किसने बताया सीए का बिजनेस टैक्सेबल है, सीएमए का बिजनेस टैक्सेबल है, डॉक्टर का बिजनेस टैक्सेबल है, लॉयर का बिजनेस टैक्सेबल है, ट्रेडर टैक्सेबल है, मैन्युफैक्चर, आपको किसने बताया? किसी ने नहीं बताया। क्या टैक्सेबल है वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सब कुछ टैक्सेबल है। हाँ, क्या एग्जम्प्ट है? इंडियन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, ये लिखा है तो एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है तो नॉट टैक्सेबल है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए कि बाबा बाय डिफॉल्ट सब कुछ टैक्सेबल है, इसको कॉम्प्रहेंसिव लॉ बोला जाता है। ओके, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट के बारे में ये लॉ नहीं है। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होती क्योंकि हमारा इनकम जो होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, रिकरिंग होता है। कैपिटल रिसिप्ट यूजुअली टैक्सेबल नहीं होती। सिलेक्टेड कैपिटल रिसिप्ट्स को कैपिटल गेन चैप्टर में हम टैक्स करते हैं। जब कैपिटल गेन चैप्टर में जाएंगे तो इसके बारे में ज्यादा बात कर लेंगे, अभी इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। सिलेक्टेड कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल होती है, बस इतना आप याद रखो, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। Okay, let's check your answer. From the following particulars of income furnished by Mr. Anirudh, individual pertaining to the year ended 31st March 2021, compute the total income for assessment year 21-22 if he is a OR, NOR and NR. तो OR सबसे ज्यादा टैक्स, हाईएस्ट टैक्स जो होगा वो OR भरता है, एवरेज टैक्स जो होता है वो NOR भरता है, और NR ओनली एंड ओनली इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरता है। ये हमारी बात हो चुकी है, ओनली इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स भरेगा। पहला पॉइंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, बाप रे, शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया, ये तो है बाबा, इंडियन कंपनी के शेयर्स है, इंडियन कंपनी है तो ये टैक्सेबल टू ऑल होगा, सारे लोग टैक्स भरेंगे इसके ऊपर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भले वो रिसीव्ड जर्मनी में हुआ रहेगा, तभी भी इंडिया में भी OR को भी टैक्स होगा, NOR को भी टैक्स होगा और NR को भी टैक्स होगा क्योंकि ये इंडियन इनकम है, ठीक है। उसी के जैसे डिविडेंड फ्रॉम जापानीज कंपनी रिसीव्ड इन जापान, ये तो पक्का फॉरेन इनकम है, प्योर फॉरेन इनकम, ओके। लेकिन फिर भी ये टैक्सेबल होगा, फिर भी ये टैक्सेबल होगा किसके हाथ में? OR के हाथ में, ठीक है ना, OR के हाथ में। NOR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, OR के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, रेंट रेंट रेंट, ये वर्ड बहुत हाईलाइट करो, ये बहुत ही ट्रिकी वर्ड है यहाँ पे। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, लंदन में प्रॉपर्टी लोकेटेड है, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया थ्रू अप्रूव्ड बैंकिंग चैनल, वो जाने दो, रेमिटेंस को हम इंडियन इनकम नहीं मानते। तो ये इनकम डिपॉजिटेड इन लंदन मतलब अक्रूड इन लंदन, रिसीव्ड इन लंदन। लेकिन इसका आंसर 75,000 नहीं होगा, यहाँ पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ता है। आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ के रखा है ना? हेलो, तो यहाँ पे आपको पता ना, रेंट, रेंट कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, इनकम वर्ड होना चाहिए था यहाँ पे। रेंट बोला है तो ये GAV है, इसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मैंडेटरी है। तो एक ट्रिकी पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो ये देखो,
रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन डिपॉजिटेड, लेकिन ये 52,500 आ गया, ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा, बाकी लोगों के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, और इसका ऐसा वर्किंग नोट आपको दिखाना पड़ेगा 75,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, जो ओआर का होता है वो कितना आएगा 52,500। ठीक है, आगे चलता हूं। डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड, इंडियन कंपनी, बाबा इंडियन कंपनी का डिविडेंड टैक्सेबल टू ऑल, उसमें कोई बात नहीं है, टैक्सेबल टू। और एग्रीकल्चर इनकम लैंड इन गुजरात, गुजरात मतलब ये तो फुल्ली एग्जम्प्ट, तो ये देखो फुल्ली एग्जम्प्ट तो किसी को टैक्स नहीं लगेगा, तो ये 6,000 तीनों को टैक्स लगेगा, फुल्ली एग्जम्प्ट के ऊपर किसी को टैक्स नहीं लगेगा। तो जो ओआर का टोटल है वो 83,500 है, एनआर का टोटल, एनआर और एनओआर का टोटल 2121 है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा फॉरेन इनकम नहीं था जो बोलता है बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो इन दोनों का ओआर एंड एनओआर का इनकम सेम ही आएगा, ठीक है ना, एनओआर और एनआर का इनकम सेम ही आएगा। ये लॉग आउट होने वाला है, प्लीज लॉग इन करो इमीडिएटली, अभी ये लॉग आउट हो रहा है, इमीडिएटली लॉग इन करो प्लीज।